स्टूडेंट्स आप स्ट्रैस ते स्ट्रेन दी एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, टाइप्स भी कर चुके हैं। स्ट्रेन किहदे कोल होंदी है? चेंज इन कन्फिगरेशन ऑफ ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ठीक है, ये ऐसे यूनिट की होंगे ये यूनिट लैस आ, क्योंकि ऊपर जो यूनिट ऊपर कन्फिगरेशन होने वो नीचे होने, जिवें चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ आ यूनिट्स कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये आप करवा दिता से। अगे जी इलास्टिक लिमिट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इट्स डिफॉर्मिंग इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल form completely, and beyond which if deforming force is increased the body loses its property of elasticity and get permanently deformed। देखो जिवें मैं एक मटीरीयल लवां, ठीक है, मटीरीयल मीनस जिवें एक तुहाडी रबड़ हो गई, जिवें एक रबड़ होंदी ना, तुहानूं पता रबड़ जिवें दो तीन तरीके ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੀਗੇਨ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ डिफॉर्मिंग फोर्स ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਮਟ ਆ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੇਗੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰੀਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ ਉਸ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਕਸ ਲਾਅ। ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। देखो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈਡ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। 300 ਗ੍ਰਾਮ, 400 ਗ੍ਰਾਮ, 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੋਰਸ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਓਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ? ਲੋਡ ਅਪਲਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ। ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ? ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ
उन्नी ज़्यादा की होनी है, कन्फिगरेशन ज़्यादा चेंज होनी है, मीनस उन्नी ज़्यादा कन्फिगरेशन चेंज होनी मतलब स्ट्रेन। ठीक है, इट मीनस कि स्ट्रैस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे हैगी आ, स्ट्रेन दे। स्ट्रैस हैगी स्ट्रेन, ये 100% वेरीफाइड है, तुहाडा एक्सपैरीमेंटली वेरीफाइड है, तुहानूं एक्सपैरीमेंट भी हैगा। ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आया हुंदा। ठीक है जी, ये तुहाडा होगा हुक्स लॉ, स्ट्रैस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, हुण मैं इहदा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है जो हटा देता, फिर क्या आंदा अपने को कॉन्सटेंट ई आ गया। ठीक है, इनू कॉन्सटेंट ई नूं आपां की कहने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, हुण आपां करदे हां मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपां हुक्स लॉ तो कीता स्ट्रैस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इनू रिमूव किया कॉन्सटेंट आ गया ई क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई किहदे कोल है मेरा, स्ट्रैस ओवर स्ट्रेन। सो ई नूं कहने आपां कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ द elasticity of the body which is independent of magnitude of stress and strain but depend upon the nature of material of the body and the manner in which the body is deformed। मतलब ये ई जिहड़ा कॉन्सटेंट आ, ये ना स्ट्रैस ते डिपेंड करदा ना स्ट्रेन ते, ए रेशो की रहनी कॉन्सटेंट रहनी है, स्ट्रैस नूं स्ट्रेन नूं वेरी करी जाओ बट इन्ने सेम रहना ई, सेम मटीरियल वास्ते। ठीक है, जिवें इत्थे तुसीं इहनूं वेरी करी जाओ ई सेम होना तुहाडा। सो यूनिट की हो गई इलास्टिसिटी दे, यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट की हो गए, इधर देखो स्ट्रैस के यूनिट की होंगे, ई की है स्ट्रैस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रैस की होंगे मेरा न्यूटन पर मीटर स्केयर, स्ट्रेन की होंगे डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होंगे, तो ये यूनिट की आ गया न्यूटन पर मीटर स्केयर आ गई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुण इहदियां टाइप्स कर लईए, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक ये होंगे जी नॉर्मल स्ट्रैस ओवर लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यदि रेशो तो इक्वल होंगे। हम देखो जिवें यह वायर आ, यह क्रॉस सैक्शन एरिया ए आ, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, एक्सटेंड होगी वायर डेल एल। ठीक है, लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, डेल एल ओवर एल। नॉर्मल स्ट्रैस, नॉर्मल मीनस तुम एरिए से नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल मीनस 90 डिग्री के एरिए से। तो क्या है मेरे फोर्स पर यूनिट एरिया, हम यह एरिए से अप्लाई कर रहे हैं ना, एरिया कितना होगा पाई इंटू आर स्केयर, तो मेरा जंक्स मॉडुलस कितना आ गया एफ ओवर पाई आर स्केयर ओवर डेल एल ओवर एल। हम जंक्स मॉडुलस अं कि वास्ते फाइंड करते हैं, सिर्फ सॉलिड्स वास्ते, कि वास्ते सॉलिड वास्ते। ठीक है जी, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि देखो जिदा ज़्यादा जिन्ना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा की होएगी इलास्टिसिटी। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रबड़ ते स्टील वाली गल कही सी ना, देखो यंग्स मॉडुलस फाइंड करिए रबड़ का भी, तो एक मैं रबड़ लै ली। ठीक है, लेंथ भी सेम जी ओरिजिनल लेंथ है रबड़ की है, एरिया भी एक स्टील वायर ला ली मैं। ठीक है, यदी भी लेंथ एल आ, यदा एरिया ए है, यदा भी ए है, दोनों सेम लेंथ तो सेम एरिया वाला ले लिया। ये भी मैं फोर्स अप्लाई की जिवें मान लो 10 न्यूटन, इतने भी फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन। हम देखो यंग्स मॉडुलस कि होंगे फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर डेल एल ओवर एल। हम देखो फोर्स सेम सेम दोनों वास्ते, रबड़ वास्ते भी तो स्टील की वायर वास्ते भी। एरिया सेम, यदा भी सेम लिया मैं, एदा भी सेम लिया, सेम लेना, यदा मतलब उपरली रेशो की होगी सेम होगी। इनू मैं इदा लिख ला वाई इज इक्वल टू, इन वाई ने रिप्रजेंट कर दें जंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ ओवर ए इंटू एल ओवर डेल एल। एफ ओवर ए कॉन्सटेंट होगी, हम दोनों की लेंथ भी हैगी सेम हैगी, ये भी कॉन्सटेंट होगी। सो जंक्स मॉडुलस किते डिपेंड कर रहा है केस 1 ओवर डेल एल ते, है ना। जिहदी ज़्यादा कन्फिगरेशन चेंज होएगी वह जंक्स मॉडुलस घट होएगा। हम देखो किहड़ी ज़्यादा एक्सटेंड होएगी, कन्फिगरेशन किहदी ज़्यादा चेंज होएगी, रबड़ की कि स्टील वायर की। हम इतने मैं 10 न्यूटन अप्लाई की ना, ये एक्सटेंशन ज़्यादा होनी है डेल एल 1, ये एक्सटेंशन की होनी है घट होनी है। सो मेरा डेल एल 1 की होगा ज़्यादा होगा डेल एल 2 नालों।
ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਲ ਐਲ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਰਬੜ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਬੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੀਲ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੈਨ ਕਾਪਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਸਟੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ, ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ, 13 ਹੈਗਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 13, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਰਿਜਿਡ ਹੋਵੇ, ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੰਕਸ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਮੀਨਸ नो चेंज इन शेप। हम जंक्स मॉडुलस देखो, फॉर्मूला लिखो, तेन फॉर्मूले तो सारा कुछ मिल जाना, डेल एल ओवर एल, एफ ओवर ए ओवर डेल एल ओवर स्ट्रैस ओवर स्ट्रेन, है ना, नॉर्मल स्ट्रैस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो कि वो कन्फिगरेशन चेंज होएगी, मैं कहना वो शेप चेंज नहीं होनी, कन्फिगरेशन नो चेंज इन कन्फिगरेशन भी लिख लो, नो चेंज इन कन्फिगरेशन मतलब डेल एल की हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एफ ओवर ए ओवर, इनू सही तरीके करके लिख लिया, इंटू एल ओवर डेल एल आ लेना, है ना, कि वो कन्फिगरेशन चेंज होएगी या नहीं चेंज होएगी। सो वाई कि आ जाएगा इंटू एल ओवर 0। सो ये की बन गया, एफ इंटू एल ओवर 0 की हो जाऊगा इनफाइनाइट, वो जंक्स मॉडुलस की होगा इनफाइनाइट। सो परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या है, इनफाइनाइट है जंक्स मॉडुलस। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 5 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 5 किलोग्राम वेट, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ द जंक्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज दिस मच। तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है।